Hi guys, and welcome to my class of crash course. Today's topic is Ohm's law, okay, of class 12th 2021 board exam topic. This topic is so important that this video is not only beneficial or benefit for only class 12 student, but this video is to benefit for many other students also, like for competitive exams and any other students, class 11th, 9th, 10th, any children can see or go through this video for detailed information about this Ohm's law. So guys, let's get started. Ohm's law. Ohm's law means this Ohm's law is mainly based upon only three major basics. Okay, that three you can see in your screen. That three topics are current, volt, and resistivity. This okay. So current means I, okay, volt means V, okay, and resistance means R. This much everybody know. Very nice. Let's move forward. So let's see how these three topics are interrelated to each other. Now, our Ohm's law statement states that at a constant temperature, okay, temperature will be constant, okay, at a constant temperature, okay, the potential difference, this V means not voltage, V means potential difference, okay, this V means potential difference. Now the potential between these two ends, not 2 points, the potential between two ends, okay, in metallic wire. This wire is what? This is metallic wire. Okay, you're seeing in your screen, I hope so. Yeah, it is metallic wire. And this wire is what? This wire is what type of wire? Conductor. This wire is conductor. Okay, now let's move forward. This V means the potential difference between the two ends, not the 2 points, guys, two ends. That potential difference is directly proportional to what? This I. What is this I? I means current. Very nice, correct. I means current. So this formula means V is directly proportional to I. Okay, now we'll go through a mathematical concept that see V is directly proportional to I. So if we have to remove this proportionality symbol, then we have to put इक्वल टू डालने के बाद अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम इसको साइन को हटाना है, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है जो है आर. तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर और v इज इक्वल टू आर आई, एनीथिंग, इट इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे जो r है ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस. ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ओके, सो आर आई लिख देते, बेटर होगा समझने को. तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो रोकता है. रेजिस्टेंस क्या है? दैट
oppose the flow of current. ओके, that oppose the flow of current. तो इतना समझ में आया. ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा गाइस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, आई होप अप टू हियर क्लियर. ओके, then if we move further, then this potential difference V and I का ग्राफ कैसा होगा. अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ दिमाग लगा के हम बोल ही सकते इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा. क्यों? क्योंकि बता दीजिए कोई. They are directly proportional. Obviously, they are directly proportional. Okay. Listen, another thing that this graph see में ऐसे प्लॉट करना है आपको. I या में A क्यों है? A means एम्पियर करंट, I means करंट. करंट का SI यूनिट है ये, इसको बोलते हैं एम्पियर. क्लियर हुआ? ओके. तो हम लोग अगर मैं आप सबको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ आएगा जिसका नाम है लेंथ L, ठीक है, और एक होता है A. आई होप इट्स एरिया. सो यहाँ पे एक मैथमेटिकल चीज़ आ रहा है जो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब ये इसको चेंज करना है में कुछ इक्वल टू साइन के, तो इक्वल टू डाल देंगे. ठीक है, तो इसको अगर हम कुछ करेंगे तो समथिंग कुछ एक रो आ जाएगा, से रो L आ जाएगा. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि ये जो इसका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, छोटू सा लिख लीजिए. ओके, और ये क्या है? ये रो है. ये रो किसका है? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. जी हाँ, यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे. समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर. या now we are going to discuss some MCQ upon this Ohm's law, because your 2021 exam is mainly depends on Ohm's law. Okay, mainly depends on Ohm's law. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक MCQ एग्ज़ाम के साथ. आई मीन सॉरी, नॉट एग्ज़ाम, एक MCQ क्वेश्चन के साथ. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि Ohm's law is true for. Ohm's law is true for means Ohm's law true for means आपको उसमें से कोई भी 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से एक स्टेटमेंट होगा, क्या बताइए? एनी गेसेस? फॉर मेटालिक, फॉर व्हाट? फॉर मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर. दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन पर? ओके, ये होगा आंसर. मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर में आपको टिक करना होगा. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल. एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल लिख लीजिए. वो है, क्या बताइए? डायोड, जिसको हम
डायोड भी बोलते हैं। लिख लिया आपने? अब बाद में वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द लेंथ is of the conductor is doubled and the area of cross section remains same, क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। देखिए इसको अपने स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इट्स रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वन थिंग गाइस, मैंने अभी बताया, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R। यस, तो अगर बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा। इट मीन्स मैं बता दूँ, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर L ये होगा तो ये भी तो होगा ना। हाँ, सिंपल बात है, होगा कि नहीं होगा। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक माई दिस वीडियो। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब ही जाके सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, क्योंकि हर वीडियो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मीट यू अगेन वेरी सून, बाय बाय।